Children, I hope you all have completed exercise 7.9. So this is the next exercise now, whose first question is 0 to 1 x dx upon 1 plus x square, and in questions 1 to 8 we have to evaluate the integrals using substitution. Now we are going to take help of substitution. So this type of work you have already done for indefinite integral. Now we have to go for the same, but for डेफिनेट इंटीग्रल. ठीक है, अर्लियर देयर वर नो लिमिट्स. हम इंडेफिनेट इंटीग्रल के लिए सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे. नाउ विल बी डूइंग द सब्स्टिट्यूशन टू इवेल्युएट अ डेफिनेट इंटीग्रल, एंड दैट इज सिमिलर ओनली, बट वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट द लिमिट्स, राइट? So here we observe, this is, you are very familiar with this function. If we consider this 1 plus x square as t, then x dx is going to be half dt, है ना? So let 1 plus x square is t, then differentiating both sides with respect to x, we get 2x is equal to dt by dx, alright? Or I can say x dx is equal to half of dt, that is equal to integration of dt upon half बाहर ले लिया being constant t. But what we have to keep in mind that earlier these were the limits of x when x was the variable. Now t is the variable, so we cannot copy the same limit. We now have to find out the limits for t. ठीक है, and this is very simple to be evaluated. आपको देखो x limits are given 0 to 1. So once we'll take x 0 and we'll find out t correspondingly, and next we'll take x equals to 1 and we'll find out the corresponding value of t. ठीक है, so if now this is evaluation of limits going on, right? If x is 0, then 1 plus x square is t, that means 1 plus 0 square is equal to t, तो t का वैल्यू आ जाएगा 1. And if upper limit we take x equals to 1, then t is again 1 plus x square, that is 1 plus 1 square, that is 2. So limits for t are 1 to 2. लिमिट चेंज हो गई. आप लिमिट चेंज नहीं करोगे तो दिस विल गो रॉन्ग, क्योंकि दीज वर द लिमिट्स फॉर एक्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लिमिट्स फॉर टी, एज नाउ टी इज द वेरिएबल. ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, तो लिमिट्स भी किसका होना चाहिए? वी शुड हैव द लिमिट्स ऑफ टी, राइट? सो हियर you know that integration dt by t is log t, so this is half of log t. What is the difference in this and indefinite integral? In indefinite integral, what we used to do, we just used to write, substitution किया था, लिमिट से कोई लेना देना नहीं था, तो we could write, we used to write log 1 plus x square plus c, वो हमारा आंसर हो जाता था. इफ वी आर डूइंग डेफिनेट इंटीग्रल विदाउट सब्स्टिट्यूशन, तो हम आंसर में लिख देते हैं हाफ ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वापस रखते हैं एंड फिर x की लिमिट रखते हैं. बट एज वी आर नाउ डूइंग विद सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं, तो अब आप इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर में वापस नहीं रखेंगे, बिकॉज यू हैव द लिमिट्स ऑफ टी, दीज आर द लिमिट्स ऑफ टी. तो यहाँ पे आप वापस ये नहीं रखिएगा कि log 1 प्लस एक्स स्क्वायर. वाई? बिकॉज वी हैव change the function, we have changed it in terms of t along with the limits. तो आप इसको substitute back नहीं करोगे, you will not replace x 1 plus x square equals to t, that will go wrong, क्योंकि आप लिमिट t की ले रहे हो, फिर आप x में रखने का तो कोई सेंस ही नहीं है. so now we will use the limits of t only, and हम इसे x में change नहीं करेंगे at all. so half of log 2 minus log 1, and log 1 is, you know that log 1 is 0, so it will be half of log 2, दैट इज आंसर. ठीक है, पावर में फॉर्म में लिखना चाहें तो log अंडर रूट 2 आ जाएगा ये, एंड दैट विल बी द आंसर, बिकॉज दिस इज log 2 रेज टू द पावर हाफ, है ना, पावर ऊपर चली जाती है. अदरवाइज दिस ऑल्सो इज ओके. Next we have second question, which is this: I is equal to 0 to pi by 2 sin phi cos phi phi d phi. So you can observe this sin phi is within square root, right? So you can observe that if we consider this root sin phi as t, तो इसमें हमें cos phi d phi dt मिलेगा. तो इट मीन्स we should keep one cos phi separate, and then cos raised to the power 4 phi we can write as 1 minus sin square phi whole square. तो ये भी आपका t में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इजीली, है ना. सो व्हाट वी आर डूइंग विदाउट सब्स्टिट्यूशन, फर्स्ट वी आर सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन, फिर हम उसके बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, sin phi, दिस इज cos 4 phi
into cos phi. We have just broken this cos raised to the power 5 phi into this d phi, right? This is equal to integration 0 to pi by 2 under root of sin phi into 1 minus sin square phi whole square, because this is basically cos square phi whole square, and this cos square I have broken like 1 minus sin square phi into cos phi as it is. क्यों? क्योंकि ये d phi मतलब सब्स्टिट्यूशन में ये एडजस्टमेंट के काम आने वाला है. सो व्हाट सब्स्टिट्यूशन नाउ आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू कीप दिस साइन फाई एज टी, क्योंकि ये फिर टी में पॉलिनोमियल बन जाएगी. ठीक है, आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पहले किए हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल में. सो व्हाट आई एम अज्यूमिंग नाउ, लेट साइन फाई इज इक्वल टू टी, देन दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन रूट टी 1 माइनस टी स्क्वेयर. यहाँ आप डिफ्रेंशिएट करो, कॉस फाई इज इक्वल टू डी टी बाई डी फाई, और आई कैन से कॉस फाई डी फाई इज इक्वल टू डी टी. तो दिस इज रूट टी 1 माइनस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर, कॉस फाई डी फाई विल गिव यू डी टी. नाउ वी आर लेफ्ट टू चेंज द लिमिट. ठीक है, आपने साइन फाई को टी एज्यूम किया है. फाई, इफ फाई इज जीरो, फाई के लिए लिमिट्स थी 0 टू पाई बाई 2. इफ फाई इज जीरो देन टी इज साइन फाई, टी इज व्हाट साइन फाई, फाई के प्लेस पे 0 आ जाएगा, एंड साइन 0 इज 0, तो लोअर लिमिट इज 0. एंड इफ फाई को हम पाई बाय 2 रखते हैं, देन टी इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2, दैट इज इक्वल टू 1. तो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 टू 1 हो जाएगी. ठीक है, लिमिट इज 0 टू 1, एंड दिस इज इक्वल टू 0 टू 1 टी टू द पावर हाफ 1 plus t raised to the power 4 minus 2t square dt a minus b whole square I've used. अब ये t में क्या बन गई, पॉलिनोमियल टाइप की इक्वेशन बन गई. ठीक है, पॉलिनोमियल तो नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ पे आपका t का पावर इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए. मीन्स दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. आई कैन से 0 to 1 t to the power half plus t to the power 4 plus half 9 by 2 plus, sorry, minus this is twice of t to the power 5 by 2, this whole into dt, right? t to the power half, t to the power 4 plus half is 9 by 2, and 2 plus half is 5 by 2, right? Now we'll use power rule. t to the power half सबको अलग कर दीजिए, dt 0 to 1 plus 0 to 1 t to the power 9 by 2 dt minus twice of 0 to 1 t to the power 5 by 2 dt, right? ये आ जाएगा. फिर ये हो जाएगा t to the power 3 by 2 by 2 by 3. this 2 by 3 I am keeping out of limit, and limit हो जाएगी 0 to 1. ठीक है, कांस्टेंट तो लिमिट से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, सो वी कैन कीप इट असाइड. बाहर लिख दिया मैंने. एंड हियर ऑल्सो विल हैव टी टू द पावर 9 by 2 plus 1 विल गिव यू 19 by 2, है ना? दिस विल गिव यू 19 by 2. 9 by 2 plus 1 11 by 2, सॉरी, तो 11 by 2. ठीक है, दिस इज सो 2 by 11 आउटसाइड. विल हैव t to the power how much 11 by 2, limit 0 to 1 minus twice of t to the power 5 by 2 plus 1 will give you 7 by 2, and बाहर आ जाएगा 2 by 7. this is not 22 by 7 ना, this is 2 into 2 by 7, right? so what do we have for simplification? ये आ जाएगा 2 by 3, 1 raised to the power 3 by 2 is 1 minus 0 plus 2 by 11, 1 raised to the power 11 by 2 is 1 itself minus 0 minus 2 to the 4 by 7 into 1 minus 0, क्योंकि सारे का लिमिट है 0 to 1, right? so this will be 2 by 3 positive, 2 by 11 positive minus 4 by 7, right? now we should simplify these. सारे ये मुझे को प्राइम नंबर्स टाइप के लग रहे हैं, तो देयर एलसीएम विल बी देयर प्रोडक्ट. 11 3 33 into 7, ऐसे ही लिख देते हैं. 3 into 11 into 7, it will be easier to take LCM. 11 7 77 into 2 154.
प्लस दिस इज 11 से करेंगे तो 3 7 ज़ा 21 2 ज़ा 42 माइनस 7 से करेंगे तो 33 इंटू 4 4 3 ज़ा 12 4 3 ज़ा 12 1 13. So when we simplify this is 90 negative है ना. 154 minus 90 will give you 64 आ जाएगा by 21 into 11. 21 into 11 will be 231. So 64 by 231 should be the answer. ये तो सब कैलकुलेशन है, ठीक है. बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूशन क्या करें. कैलकुलेशन ऑफ कोर्स यू हैव टू डू वेरी केयरफुली, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट राइट आंसर. और बेसिकली आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, और वो आप ऑलरेडी यू हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट इन द प्रीवियस एक्सरसाइजेस. व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस एक्सरसाइज कि हम x की वैल्यू वापस नहीं रखते हैं. वहाँ हम क्या कर रहे थे, क्योंकि हम इंडेफिनिट इंटीग्रल को डील कर रहे थे विदाउट जो भी जब हमने सॉल्व किया तो हम वैल्यू वापस कर दे रहे थे यहाँ पे कि आफ्टर सॉल्विंग द इंटीग्रल वी वर पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ दिस टी की वैल्यू एक्स के टर्म्स में. बट यहाँ क्यों नहीं हम ऐसा करें, बिकॉज वी हैव चेंज द लिमिट. लाइक इन 7.9 एक्सरसाइज कहीं हमने सब्स्टिट्यूशन किया भी तो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने टी को वापस एक्स के टर्म्स में रख दिया था, तो हमने चेंज नहीं किया लिमिट. बट हियर वी आर बेसिकली इन दिस एक्सरसाइज गोइंग टू लर्न दैट हाउ टू चेंज द लिमिट एंड हाउ टू सिंप्लीफाई आवर एक्सप्रेशंस. क्योंकि यहाँ पे अगर साइन वापस रखोगे तो इंटीग्रेशन विल बी अ टीडियस टास्क ना. तो सब्स्टिट्यूशन का हमें बेनिफिट मिल रहा है दैट वी आर गेटिंग सिंपलर टर्म्स. आपका देखो कहाँ साइन वाइन चल रहा था एंड नाउ यू हैव गॉट सिंपल पावर फॉर्मूला एप्लीकेबल. तो दिस इज सिंप्लीफाइंग आवर वर्क बेसिकली, ठीक है. सो वी हैव अ लॉट ऑफ यूज ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन, चेंज इन लिमिट्स. ये आपका कई जगह यूज होगा, इवन फिजिक्स में भी यूज होगा, राइट.